السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد اور میں ہوں طارق مسعود علیانی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک خبر سے کہ قومی پیغام امن کمیٹی کی ڈی جی ISPR سے GHQ میں ملاقات، پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ملاقات میں فتنہ الخوارج TTP اور TTA کے تناظر میں داخلی سلامتی پر جامع گفتگو کی گئی۔ کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ کہا کہ مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد نے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کے منفی پروپیگنڈے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ بلوچستان کے علاقے بسیما میں مقامی افراد سے ملاقات کے موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارتی ایما پر دہشت گرد عناصر بلوچستان کی ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنا کر انہیں سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد کی بسیما میں مقامی افراد سے ملاقات میں تاجر، اساتذہ، معززین اور نوجوانوں سمیت مقامی اسٹیک ہولڈرز شریک تھے۔ مقامی افراد نے عوام سے براہ راست رابطے پر کور کمانڈر کوئٹہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے مسائل کے حل کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ اس موقع پر کور کمانڈر نے کہا کہ مقامی آبادی کو بہتر سہولیات اور بہتر معیاری زندگی فراہم کرنے کے لیے پاک فوج سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر علاقے میں ترقیاتی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کے منفی پروپیگنڈے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن عناصر بھارتی ایما پر بلوچستان کے ترقیاتی عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، تاہم پاک فوج مقامی آبادی کے تعاون سے امن و خوشحالی کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اطلاع سندھ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے سے متعلق بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ کہا کہ کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرایا جانا تھا، تاہم حکومت سندھ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ شرجیل انعام احمد کہتے ہیں کہ بطور مہمان سہیل آفریدی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔ حیدرآباد میں انہیں پریشانی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روٹس کو فالو نہیں کیا گیا، جلسے کی اجازت دے دی تھی، تاہم باغ جناح کا ٹرسٹ وفاق کے تحت کام کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سے متعلق تھریٹ الرٹ بھی ملا جس سے انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا جناب آئے، جیسے ہی ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو سندھ حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر سیکیورٹی حکومت سندھ فراہم کرے گی۔ تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا اور پھر ایک دفعہ خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ وہ پھر حکومت نے بہت ہی تحمل سے اس کا جو ہے مقابلہ کیا۔ حیدرآباد میں ان کو واپسی میں جو ان کو روٹ انتظامیہ نے دیا تھا انہوں نے اس کو اگری کیا تھا، اس روٹ بنے کے رات کو یہ چلا گیا حیدرآباد والی پل پہ۔ کمٹمنٹ کی، اس کے باوجود بھی کمٹمنٹ کو پھر انہوں نے جو ہے اس کی وائلیشن کی اور انہوں نے سیکیورٹی کی بریچ کرتے ہوئے ان علاقوں میں کیا ساؤتھ میں جہاں پہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کریں گے۔ ایک تھریٹ بھی آیا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کو کہ یہ کوئی ایک سیکیورٹی ادارے کی طرف سے آپ کو جو ہے آپ کے لیے تھریٹ ایک الرٹ جاری ہوا ہے، ان کو بتا دیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس ایجنڈے سے متعلق استفسار کیا۔ پارلیمانی لیڈر سعید نوید قمر نے اجلاس ایجنڈے سے متعلق بتایا بلاول بھٹو کو وفاقی حکومت کی جانب سے دانش اسکول کے قیام کے بارے میں بریف کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ دانش اسکول صوبائی معاملہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ممبران کو ہدایت کی کہ قائمہ کمیٹیوں پر نظر رکھیں، قائمہ کمیٹیوں میں آرڈیننس سے متعلق قانون سازی ہوگی، اس پر فوکس کریں۔ یومیہ بنیاد پر سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہیں، صوبائی حکومت کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ گورنر KP فیصل کریم کندی کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو دورہ سندھ میں خوش آمدید کہا گیا، انہیں سیکیورٹی دی گئی۔ PTI سندھ کے دوست جلسہ گاہ بھرنے میں ناکام رہے۔ PTI نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی، لیکن ہم نے ہمیشہ دانائی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا۔ CM صاحب کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا، ان کی ٹیم کے ساتھ ان کے شیڈول لیا، ان کے لیے تمام جو ہے وہ انتظامات کیے۔ سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی، تو فل پروف سیکیورٹی دی۔ وہاں پر سندھ حکومت کے نمائندوں نے
वज़ीर आला साहब और उसकी टीम को रिसीव किया। सिंध हुकूमत का आप करें प्रोग्राम, इसमें पार्क में करें जो जलसा गाह है जहाँ पर हर सियासी पार्टी करती है। तो मेरे ख्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसा गाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। सिंध हुकूमत ने गेस्चर पेश किया, लेकिन PTI ने हमेशा इंतशार से काम लिया। इस्लामाबाद में पुलिस वाले डकैतियां कर रहे हैं। एक थानेदार ने 2 करोड़ रुपए वापस किए। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि NCCI ने इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम इस्तेमाल करके छापा मारा, लोगों को गिरफ्तार किया और सामान चोरी करके ले गए। ये अफसरान हैं या डाकू? पुलिस वाले नाकों पर वर्दी पहनकर शहरियों को लूट रहे हैं। इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं। एक आध डकैती में मिनिस्टर मौसूफ के नोटिस में लाया और डकैती जो है कोई और नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। जो केस में उनके नोटिस में लाया उसमें 2 करोड़ की डकैती शहरियों के साथ हुई थी और इनके नोटिस लेने की वजह से उन डाकुओं ने जो गिरफ्तार हुए पुलिस के थानेदार थे और उन्होंने पैसे जो हैं वापस किए। 5 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे NCCI ने एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम कोट किया कि इसके इमा पे हम छापा मार रहे हैं और छापा मारने के बाद उन जगहों से लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, एयर कंडीशनर सारी चीज़ें ले गए और आज तक वो लोग जो हैं अपने अशिया के पीछे फिर रहे हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में अलीमा खानम समेत 11 मुलजिमान के खिलाफ 26 नवंबर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुकदमे के 8 मुलजिमान अपने वकला समेत अदालत में पेश हो गए। इस्तखाजा के 10 गवाहान पर जिरा समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। कौमी असम्बली में दरख्त लगाओ माहौल बचाओ का मुतालबा कर दिया गया। मामले पर PP और MQM एक पेज पर नजर आए। पोलन एलर्जी की आड़ में दरख्तों की कटाई नामंजूर कर दी। तनकीद पर तलाल चौधरी भी चुप ना रहे, भरपूर जवाब दिया। दरख्तों की कटाई पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस हुई। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर तलाल चौधरी ने भरपूर जवाब दिया। कहा कि इस्लामाबाद में 29,000 दरख्त काटे गए हैं जबकि 40,000 लगाए गए हैं। बिला वजह हुकूमती इक़दामात को निशाना ना बनाया जाए। 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। फारूक सत्तार ने जोर दिया कि हुकूमत को ख्याल रखना है कि जितने दरख्त काटे गए इससे ज्यादा लगने चाहिए। माहौलियाती तब्दीली अहम इशू है, स्मोक बढ़ रही है। इस्लामाबाद में बहुत पुराने दरख्त भी कटे हैं। दरख्त कटने नहीं चाहिए और अगर दरख्त कट रहे हैं तो उनसे कई गुना ज़्यादा दरख्त लगने चाहिए। और हमारे बहुत सारे बड़े चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज यकीनन माहौलियात की आलूदगी का है। PP रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर दरख्त नहीं काटे जाते। अचानक आपको ख्याल आया कि पेपर मलबरी से पोलन एलर्जी बढ़ रही है। 4 दरख्त लगाने से कुछ नहीं होगा। दुनिया भर में इस किस्म की मास कटिंग सर कहीं भी नहीं होती। आप खड़े हो गए, आपने कहा जी ग्रीन बेल्ट उखाड़ के फेंक दें क्योंकि जी सडनली आपको ख्याल आ गया कि जी इट इज कॉजिंग पोलन एलर्जी। इट डज नॉट हैपन लाइक दिस सर। बड़े बड़े मैच्योर ट्री जो हैं उनको काटा गया है। अरकान असम्बली का कहना था कि पोलन एलर्जी से बचाव की खातिर माहौल की कुर्बानी किसी सूरत जायज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को माहौलियाती मसाइल का सामना है। वफाकी वज़ीर सेहत कहते हैं कि 5 स्टार अस्पताल बनाने से बेहतर है कि मर्ज का इंसदाद किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें शहरियों को बीमार पड़ने से रोकना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कैंसर से बचाव की वैक्सीन आ गई है और हमारे मुल्क में लोग पोलियो के हिफाजती खतरों से खाइफ हैं। 5 स्टार किस्म के लग्जरियस फैसिलिटीज के साथ भी हॉस्पिटल बना दें तो वो होगा तो हॉस्पिटल ही। आज जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि कोई सियासी वो इन बीमारियों की वजह से गरीब हो गए। 15 साल के बाद कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा दुनिया में। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है। हमारे यहाँ पोलियो जो है वो अभी भी मौजूद है। मिन्नतें करते हैं, जाते हैं, बताते हैं भाई कि बचाओ,
तो वो नहीं समझ में आती बहुत सारे लोगों की बात। पाकिस्तान का रिकॉर्डिक मंसूबा दुनिया के बड़े कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट्स में शामिल है। मादनी वसाइल मईशत में गेम चेंजर बनने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत की माइनिंग पॉलिसियों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 में आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जे करेगा। नेशनल इंटरेस्ट में शाया मजमून के मुताबिक पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनी वसाइल मौजूद हैं, जिनमें कॉपर, गोल्ड, कीमती पत्थर और नायाब मादनियात शामिल हैं। हुकूमत माइनिंग पॉलिसी में इस्लाहात करके शफाफियत और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी को फ़रोग़ दे रही है। अप्रैल में शेड्यूल पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की माइनिंग मईशत से मुतारिफ कराया जाएगा, जो अरबों डॉलर आमदन और हज़ारों रोजगार के मौक़े पैदा करने की सलाहियत रखता है। कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत करीब 450 अरब डॉलर है। बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत ने पहली कौमी जैम स्टोन पॉलिसी मुतारिफ कराई है। माहिरीन के मुताबिक मादनी शोबे की तरक्की से आइंदा बरसों में मईशत और रोजगार में नुमाया बेहतरी मुमकिन है। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज के साथ तारीखी इश्तराक। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की जानिब से एक ही टिकट पर हवाई और ट्रेन के सफ़र की सहूलत फराहम कर दी गई है। PIA की परवाज़ों से टोरंटो पहुंचने वाले मुसाफिरों की पार्टनर एसिस रेल सर्विस के जरिए कनाडा के 8 अहम शहरों तक अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। PIA से बरतानिया के शहरों मैनचेस्टर और लंदन के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिर 50 से ज़ायद शहरों तक एसिस रेल सर्विस के जरिए रसाई हासिल कर सकेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए PTA ने सख्त कवायद जारी कर दिए। 5G लाइसेंस के लिए सर्विस में मुतालिक लाजमी शराइत करार। दस्तावेज़ के मुताबिक 5G लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को लाजमी तौर पर एमरजेंसी सर्विस फराहम करना होगी। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल निगरानी यकीनी बनाना होगी। सारिफिन की निगरानी के साथ साथ किसी किस्म के इम्तियाज़ या गैर मुसाबकती सर्विस की इजाज़त नहीं होगी। नुमाया मार्केट पावर रखने वाली कंपनियों के निर्ख PTA रेगुलेट कर सकेगा। ऑपरेटर्स को सारिफिन के डेटा और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना होगा। नेटवर्क कवरेज अहदाफ के लिए कारकर्दगी बैंक गारंटी जमा कराना लाजमी होगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी फरवरी में होगी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिंध हाई कोर्ट से मुतालिक अहम इजलास। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक पर गौर व हौस किया गया। आइनी बेंचेस की तश्कील नौ और मुद्दत में तोसी से मुतालिक सिफारिशात ज़ेर बहस लाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजलास की बतौर चेयरमैन सदारत की। सिंध हाई कोर्ट की कारकर्दगी और अदालती ज़रूरियात का तफसीली जायज़ा लिया गया। जुडिशल कमीशन ने सिफारिशात को आइनी तकाज़ों के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने भी इजलास में शिरकत की। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुल्क में सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है और तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा वार्निंग में कहा गया है कि ईरान भर में जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिसके बायस गिरफ्तारियों और ज़ख्मी होने के वाक़यात और सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। सफारत खाने के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासर हो चुका है, जबकि बाज़ इलाकों में इंटरनेट और मवासलाती सहूलियात भी मुअत्तल हैं, जिससे गैर मुल्की शहरियों बिलखुसूस अमरीकियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि अगर मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्तों के जरिए ईरान छोड़ दें। वार्निंग में कहा गया है कि अमरीकी शहरी आर्मीनिया या तुर्की के रास्ते महफूज इनखला की कोशिश करें। सफारत खाने ने यह भी हिदायत की है कि इंटरनेट बंदिश के पेश नज़र अमरीकी शहरी मुतबादल राब्ता ज़राए का बंदोबस्त करें और हर मुमकिन एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी न आई। सदर ट्रंप ने टैरिफ की तोपों का रुख ईरान की तरफ तिजारत करने वाले ममालिक की जानिब मोड़ दिया। खबरदार किया कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये हुक्म हतमी है और इसका इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। अमरीकी सदर का हुक्म ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तनाजुर में सामने आया। भारत एक बार फिर खेल को सियासत की नज़र करने से बाज न आया। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमरीकी क्रिकेट टीम में शामिल 4 पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों को ताहाल भारतीय वीज़े जारी नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर अली खान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया, जबकि शायान जहांगीर, एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन को भी अब तक वीज़े नहीं मिल सके। ICC ज़राए के मुताबिक लेटर ना मिलने की वजह से मसाइल आए, मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। ICC ने तमाम टीमों को भारतीय वीज़े लगने की यकीन दहानी करवा रखी है।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। वेन्यू के हवाले से ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रही। बांग्लादेश ने भारत में खेलने से फिर इनकार कर दिया, अपने मैचेस मुंतकिल करने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। ICC ने बांग्लादेश से अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त की, ताहम BCB ने कहा कि इसका जवाब दे दिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक BCB के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। फ़रीक़ैन ने मुमकिन हल की तलाश के लिए बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में 295 रन हदफ के ताक़ुब में अमेरिका की बैटिंग जारी है। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 294 रन स्कोर किए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।